السلام علیکم BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تلنگانہ میں ایک روزہ سرکاری سوگ، قومی پرچم سرنگوں، سرکاری تقریبات معطل، حکومت ہند کی ہدایات پر فیصلہ۔ تلنگانہ میں SIR فارمز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کا امکان، ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر نے کی مرکزی الیکشن کمیشن سے سفارش۔ SIR کے درمیان بڑی غفلت، حیدرآباد کے جلپلی میں 500 سے زائد ووٹر ID کارڈز لاوارث حالت میں برآمد، سیکیورٹی و تقسیم کے نظام پر سوالات، پولیس نے شروع کی تحقیقات۔ شہباز 6 افراد کے قتل کے ملزم کو چیف منسٹر کے قریبی ساتھی نے جیل جانے سے بچایا تھا، ہریش راؤ کا سنگین الزام، 20 لاکھ رشوت کا بھی لگایا الزام۔ تلنگانہ میں نئے وزیر تعلیم کا تقرر کیا جائے، عام آدمی پارٹی تلنگانہ یونٹ کا احتجاج، کہا چیف منسٹر کی مصروفیات کی وجہ تعلیم کا شعبہ شدید بحران کا شکار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قطری امیر تمیم بن حماد ال ثانی کے والد سابق قطری امیر الشیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر حکومت ہند کی ہدایت کے مطابق حکومت تلنگانہ نے بھی آج 13 جولائی کو ریاست بھر میں ایک روزہ سرکاری سوگ منانے کا اعلان کیا۔ جنرل ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل بی محکمہ کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق تمام سرکاری دفاتر، ضلع انتظامیہ، پولیس اور دیگر سرکاری ادارے سوگ کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ اس دوران سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور کسی بھی قسم کی سرکاری تفریحی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر نئی دہلی سے تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خراج عقیدت شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی خدمات کے اعتراف اور ان کے احترام میں پیش کیا جا رہا ہے۔ فادر امیر الشیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کل اتوار کو 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے اور اپنے دور اقتدار میں قطر کو عالمی سطح پر ایک مضبوط معاشی اور توانائی کے قوت کے طور پر نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے انتقال پر ملک بھر میں بھی ایک روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی کہ SIR مہم کے دوران انومریشن فارم جمع کروانے کے عمل میں سست رفتاری اور عوام کو درپیش مشکلات کے پیش نظر SIR فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر C سدرشن ریڈی نے ریاست بھر میں جاری SIR مہم کے پیش رفت، BLOs کی کارکردگی، فارموں کی تقسیم اور وصولی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو روانہ کی ہے۔ رپورٹ میں مختلف علاقوں سے موصول ہونے والی عوامی شکایات، تکنیکی مسائل اور فارم جمع کروانے میں پیش آنے والی دشواریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف الیکٹورل آفیسر نے مرکزی الیکشن کمیشن سے سفارش کی ہے کہ 24 جولائی کو ختم ہونے والی فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ میں توسیع کی جائے تاکہ تمام اہل ووٹروں کو اپنی تفصیلات درست کرانے اور فارم جمع کروانے کا مناسب موقع مل سکے۔ تاہم اس معاملے میں حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کرنا ہے اور فی الحال تاریخ میں توسیع سے متعلق کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ مرکزی الیکشن کمیشن ریاستی حکومت کی سفارشات پر جلد فیصلہ کرتے ہوئے نئی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ ضلع الیکشن آفیسر و کمشنر GHMC مسٹر RV کرنر نے آج تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ہفتہ واری اجلاس منعقد کیا، جس میں ریاست میں جاری SIR کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
जिले इलेक्शन ऑफिसर ने घर घर इनमरेशन फॉर्म के काम की तफसील से सियासी जमातों के नुमाइंदों को वाकिफ करवाया और कहा कि इनमरेशन फॉर्म के ऑनलाइन भी हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसरों के साथ सियासी कारकुनों और आवाम के करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि कोई भी अहल राय दहिंदा अपने वोट से महरूम ना होने पाए। उन्होंने इस ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि BLOs हर मुकाम पर दस्तयाब हैं, इनसे फॉर्म्स हासिल किए जा सकते हैं और इनकी खाना पूरी करते हुए फॉर्म्स वापस दाखिल किए जा सकते हैं। मिस्टर RV कन्ना ने BLOs और BLOs के सुपरवाइजर को हिदायत दी है कि वो अपने मुकर्ररा मुकाम पर हर वक्त अवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब रहें ताकि किसी मुश्किल पर अवाम की रहनुमाई की जा सके। हैदराबाद में वोटर शनाख्ती कार्ड की हिफाजत और तकसीम पर उस वक्त सवालात उठने लगे हैं जब पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में जलपल्ली फॉरेस्ट पार्क के करीब एक बैग से 500 से ज्यादा वोटर ID कार्ड्स लावारिस हालत में पाए हुए हैं। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची, बैग को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बरामद होने वाली कई वोटर ID कार्ड्स चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के से ताल्लुक रखते हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया है जब रियासत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मुहिम जारी है, जिसके बायस वोटर दस्तावेजात की हिफाजत और तकसीम के निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर ID कार्ड्स सड़क किनारे कैसे पहुंचे। आया ये किसी गफलत का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह है। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वही जैसा देख रहे हैं आप लोग SIR का तो चल रहा। अब ये जलपल्ली पार्क है, जलपल्ली पार्क के सामने जो है ये पोस्ट ऑफिस के थैले में करीब 400-500 वोटर ID कार्ड्स पड़े हुए हैं और ये पूरे जो है चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के दिख रहे हैं और चंद्रायन गुट्टा के है तकरीबन पूरे सील है। देखिए पोस्ट के थ्रू लोगों को मिलना था, आप देख सकते हैं पूरा सील है, लेकिन लोगों को नहीं जा रहा। यहाँ कचरे में पड़ा हुआ, यहाँ पे अक्सर जो है लोग ला के ये वो चीज़ें डंपिंग करते हैं। अब ये जो है पोस्ट ऑफिस के थैले में जो है गिरा हुआ है। ऑलरेडी पहाड़ी PS को इन्फॉर्म किया गया है, PS वाले आ रहे हैं। साबिक रियासती वजीर व सीनियर BRS लीडर मिस्टर हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि शाहबाद में पेश आए 6 अफराद के इज्तिमाई कत्ल के वाक़े के मुलजिम को चीफ मिनिस्टर के करीबी रफीक कार व मार्केट कमेटी के सदरनशीन ने रिश्वत हासिल करते हुए गिरफ्तारी से बचाया था। हरीश राव ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि 6 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम राजकुमार से चीफ मिनिस्टर के एक करीबी साथी ने, जो मार्केट कमेटी के सदरनशीन भी है, पॉक्सो मुकदमे में 20 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी से बचाया था। पुलिस 45 दिन तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई और मुलजिम ने अदालत से पेशगी जमानत हासिल कर ली। इसके बाद इसने 6 अफराद का कत्ल कर दिया। हरीश राव ने कहा कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या हुकूमत पर तनकीद करते हुए कोई पोस्ट करता है तो इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन पॉक्सो केस रहने के बावजूद राजकुमार को गिरफ्तार नहीं किया गया था और पुलिस अमला इसके साथ शराब नोशी करता रहा, जिसके नतीजे में ये इंतहाई संगीन वारदात पेश आई है। పోక్సో కేసులో ఒక నిందితుడిని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డికి సన్నిహితుడు ఒక మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ 20 లక్షల రూపాయల లంచం తీసుకొని వారిని అరెస్ట్ కాకుండా ఒక రేపిస్టును కాపాడింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం। ఒక రేపిస్టును కాపాడింది। పోలీసు వాళ్ళు ఆ రేపు చేసినంత కూర్చొని మందు తాగింది। పోలీసు వాళ్ళు వాడిని అరెస్ట్ చేయకుండా 45 రోజులు టైం ఇస్తే వాడు కోర్టుకు పోయి బెయిల్ తెచ్చుకున్నాడు। 20 లక్షలు ఖర్చు పెట్టిండు, వచ్చి ఆయనతో 6గురిని ఊచకొత్త కోసిండు। నిన్న ఒక ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వెనకైన పేపర్ బాయి పేపర్లు ఎత్తుండే గోడల మీద పెయింటింగ్ రాతలు రాస్తుండే రేవంత్ రెడ్డి అని అన్నాడట। అది ఉన్నదే అన్నాడు, నిజమే అన్నాడు, గోడల మీద రాతలు రాస్తోడిన పెయింటర్। అరే నేను ముఖ్యమంత్రిని, నన్ను పెయింటర్ అంటే వాడిని పోలీసు వాళ్ళు పోయి పట్టుకొచ్చి లోపలేసి పారేశారు। మా గీత ఏదో పోస్ట్ పెట్టి గీతమ్మ మీద కూడా పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టారు। నల్లబాలు అని పటాన్చేర్లు ఉంటాడు, ఓ చిన్నగా రేవంత్ రెడ్డి తప్పు చేసిండు అని ఒక ట్వీట్
ట్వీట్ చేస్తే వాడిని పట్టుకపోయి పాపం జైల్లో పెట్టిండ్రు. మరి రేపు చేసిన మాత్రం మంద అవుతురు పోలీసు వాళ్ళు కూర్చొని. ఇది రేవంత్ పాలన. అంటే మహిళల పట్ల, సైకోల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం ఎంత ఉదాసీనంగా ఉందో మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. रियासती वजीर अक़लियती बहबूद तेलंगाना मोहम्मद अजहरुद्दीन की जानिब से जुबली हिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक इस्तकबालिया तरतीब दिया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का, स्पीकर असेंबली मिस्टर जी प्रसाद कुमार और रियासती उज़रा ने शिरकत की। रियासती वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी, जी विवेक, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के केशव राव, मुशीर बराए अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और दूसरे इस इस्तकबालिया में शरीक थे। वजीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तमाम शुरका का इस इस्तकबालिया में खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत, रियासती उज़रा और हुकूमत के मुशीर दूसरे शुरका इस मौके पर फुर्सत के लम्हात गुजारते हुए एक दूसरे के साथ खुशगवार मूड में बातचीत करते देखे गए। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर में डी वार्मिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसके तहत रियासत भर में स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों में दवाई और गोलियां तकसीम करने का मंसूबा जारी है। ये प्रोग्राम रियासत भर में 13 जुलाई से शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर सेहत मिस्टर दामोदरराज नरसिम्हा ने लोकसभा गवर्नमेंट हाई स्कूल में नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर स्कूली बच्चों में डी वार्मिंग की गोलियां तकसीम की। वजीर सेहत दामोदरराज नरसिम्हा ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत सारे तेलंगाना में जुमला 96,81,855 बच्चों की सेहत की हिफाजत के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। रियासत भर के स्कूल्स में बच्चों में ये गोलियां तकसीम की जा रही हैं। इनका मकसद बच्चों में ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम से कम करना और बच्चों की सेहत की हिफाजत करना है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर साबिक चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तनकीदों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। बीआरएस कायदीन कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी हासिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके जवाब में ये मुहिम शुरू की गई है। गवर्नमेंट विप मिस्टर बी वेंकट की क़यादत में आज गांधी भवन में एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक तस्वीर पेश की गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भारी करप्शन हुआ है और करप्शन की वजह से ही प्रोजेक्ट के डिज़ाइन वगैरह में तब्दीलियां की गई थी। बी वेंकट ने कहा कि केसीआर हुकूमत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर करप्शन के वाज़े सबूत मौजूद हैं और कांग्रेस हुकूमत तस्वीरी नुमाइश के जरिए इन्हें अवाम के सामने लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी मुफादात में और अवाम को गुमराह करने के लिए बीआरएस कायदीन की जानिब से हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। నీ మేలు పిల్లకి పరవాస్తే ఇంట్లోకెళ్ళి బయటికి పోతావా, లేదా మేస్త్రిని తీసుకొని ప్లాస్టింగ్ చేసి అదే ఇంట్లో ఉంటావా? నీ కుటుంబ సభ్యులు ఉండాల్సిన ఇంట్లో పిల్లలు వీక్గా బేస్మెంట్ వీక్ ఉందని చెప్పి తెలిస్తే ఆ ఇంట్లో నువ్వు నివసిస్తావా? ఆ ఇంట్లో నువ్వు ఉంటావా, లేదా ఇమీడియట్ గా ఎవాక్యువేట్ చేస్తావా? ఇప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా ఏ బిల్డింగ్ కన్నా చిన్న డ్యామేజ్ అయితే మొదటగా చేసేది అక్కడ నివసించే వాళ్ళని ఎవాక్యువేట్ చేస్తారు. దానికి ఏదైతే సంబంధించిన నిపుణులు ఈ బిల్డింగ్ పనికిరాదు అని చెప్పి నివేదిక ఇస్తే అది కంప్లీట్ గా డిమాలిష్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ చాలా క్లియర్ కట్ గా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, ఇది ప్రాపర్ గా లేదు, దీన్ని కడితే కంప్లీట్ గా దీన్ని ఇమీడియట్ గా దీన్ని ప్రాపర్ వేలో చేయకపోతే కంప్లీట్ గా కూలే పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పి చెప్పింది. ఇవన్నీ తెలిసినాక కూడా ఈ రోజు సిగ్గు లేకుండా ఏదో వాళ్ళ తెలంగాణ భవన్ లో రక్తదాన శిబిరం పెట్టినాక 10 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల రక్తాన్ని రాబందు లెక్క పీల్చుకెళ్ళినారు. ఈ రోజు రక్తదాన శిబిరం పెట్టిందని ఏదైతే మీరు చేసిన తప్పుని ఏదైతే మీరు చేసిన తప్పుని క్షమాపణ చెప్పుకునే విధంగా రక్తాన్ని దానం చేస్తున్నారు. దాన్ని కూడా నేను ప్రశ్నించాలనుకుంటున్నా. నిజంగా మీరు ఏదైతే రక్తదానం చేస్తున్నారో కల్వకుంట్ల తారక రామారావు ముందు రక్తదానం చేయమని చెప్పి చెప్పుకోరు. ఆయన రక్తం ఒక శాంపుల్ నాకు కూడా పంపుర్రి. ఎన్నో రోజులకెళ్ళి వీడు ఒక డ్రగిస్ట్, ఈ డ్రగిస్ట్ కి సంబంధించిన వైట్ ఛాలెంజ్ టెస్ట్ కి రమ్మంటే వస్తలేడు. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों की फसलों पर खून छिड़कने के रिमार्क एक बड़ा सियासी मसला बन गया है। चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स के बाद बीआरएस की तलबा तंजीम BRSV ने आज अतिया
करदा खून के पैकेट्स के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के घर तक पहुंचने की कोशिश की। BRS-V से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुन खून के पैकेट्स लेकर चीफ मिनिस्टर के घर के करीब पहुंच गए थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद BRS-V कारकुनों और पुलिस के माबैन धक्कम-पील देखी गई और BRS-V के कारकुन मसलसल एहतजाज कर रहे थे। इन कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है और इसे नाजेबा करार दिया। पुलिस की जानिब से BRS-V के कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए दूसरे मुकामात को मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह पुलिस की जानिब से BRS के दफ्तर तेलंगाना भवन पर भारी पुलिस फोर्स को भी मुतय्यन कर दिया गया था। సహా బాధిత కుటుంబాలను కూడా ఆరుగురం చంపితే ఇవాళ రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని మేము రిక్వెస్ట్ చేసి మిమ్మల్ని కోస్తాం రక్తం ఇస్తామనేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నావు కదా, కోసుడు ఎందుకురా బాబు? స్వచ్ఛందంగా మేమే రక్తం ఇస్తాము. ఈ రక్తం సరిపోకపోతే మరిన్ని లీటర్లు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. రైతు పొలాలలో నీళ్లు కావాలంటే 4 సంవత్సరాలు కావాలని అంటారు. తెలంగాణ కేసీఆర్ కేటీఆర్ అనుచారు రక్తం తీసి పంట సలహా అన్నాడు కదా. మేము తీసుకోండి. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వండి. तेलंगाना रियासत में वजीर तालीम को मुकर्रर करने के मसले पर आम आदमी पार्टी तेलंगाना यूनिट की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी तेलंगाना की जानिब से वजीर तालीम के तकर्रुर का मुतालबा करते हुए आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तेलंगाना आम आदमी पार्टी की कन्वीनर श्रीमती हेमा ने कहा कि रियासत में महकमा तालीम बहरान का शिकार है और तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में फौरी तौर पर वजीर तालीम मुकर्रर किया जाए, बसूरत दिगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपना इस्तीफा पेश कर दे। तेलंगाना में महकमे तालीम का कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है। शिकायत की जा रही है कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से तालीम के शोबे पर खास तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, जिसके नतीजे में रियासत में तालीम का शोबा बहरान का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में सरकारी स्कूल्स, गुरुकुल स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कई मसाइल का सामना है। तलबा और इनके वालिदैन भी परेशान हैं। ऐसे में कोई कुल वक्ती वजीर तालीम का तकर्रुर ज़रूरी हो गया है और हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में फैसला करने की ज़रूरत है। రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చి దోచుకోవడం తప్ప ఐట్ల మీద దోచుకోవడము, అదే విధంగా వచ్చేసి మీరు ఏంటిది కబ్జా రాజు లాగా వచ్చేసి జనాల మీద పడుతుంటారు, భూముల మీద పడుతుంటారు, ఫ్యూచర్ సిటీ అని చెప్పేసి. కానీ మరి ఎవరు ఈ స్కూల్ వ్యవస్థను పట్టించుకోవాలి? అది మీ బాధ్యత కదా. వెంటనే వచ్చేసి మీరు రాజీనామా చేయండి. మీకు చేత కావట్లేదు పరిపాలన. మీరు ఎంత తొందరగా వీలవుతే రాజీనామా చేయండి, లేదంటే వచ్చేసి ప్రజలు మిమ్మల్ని వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రిగా లేకుండా చేస్తారని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఇప్పటికైనా విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించండి, ప్రజలను వచ్చేసి రక్షించాలి. ముఖ్యంగా విద్యను వచ్చేసి ప్రాథమిక హక్కు అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన దాంట్లో మీరు దాన్ని కూడా నిర్వర్తించలేకపోతున్నారు. వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించకపోతే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఇంకా మీద రోజు ధర్నాలే చేస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार डिवीजन में जारी लंदन ब्रिज की अजसर नौ तामीर के काम का मुआयना करते हुए पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हतमी डिजाइन की मंजूरी के बाद पुराने पुल को मुनहदिम कर दिया गया है और अवामी हिफाजत के पेश नज़र ट्रैफिक पर आर्जी पाबंदियां नाफिज थी। मुतालिका ठेकेदार ने यकीन दहानी करवाई कि तामीराती काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा, जबकि MLA ने कहा कि मंसूबे की तकमील तक काम की मुसलसल निगरानी की जाएगी। उन्होंने मुकामी अवाम से ताउन पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वक्ती दुश्वारी के बाद इलाके को एक महफूज, मजबूत और जदीद पुल की सहूलत हासिल होगी।
इस मुआयने में साबिक कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, एमआईएम के मुकामी जिम्मेदारान और इलाके के मकीन भी मौजूद थे। आज लंदन ब्रिज जो रेन बाज़ार डिवीज़न में आता है, पुराना जो रेन बाज़ार डिवीज़न था उसमें लंदन ब्रिज का आता था, उसका काम आज से तेज़ी से चालू हुआ है। ये काम पहले से शुरू हो गया था। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ का फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद काम चालू किए थे, मगर यहाँ पर जो डिज़ाइन पूरे मुकम्मल नहीं आने की तरफ से हमने ब्रिज को नहीं तोड़ा था, बाकी काम कर रहे थे। अभी चूँकि डिज़ाइन मुकम्मल आ गया है तो इमीडिएट ब्रिज को तोड़ दिए हैं और आमद रफ्त का जो रास्ता पब्लिक का है वो बंद कर दिए हैं, चूँकि पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर इस ब्रिज का काम लिए हैं, इंशाअल्लाह उन्होंने डेली वार फुटिंग पे काम करके जितना जल्दी हो सके ये ब्रिज को मुकम्मल कराने के लिए ख़ास तौर से तवज्जो दी जा रही है। मैं एरिया की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे माज़रत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन के लिए आपको तकलीफ़ ज़रूर होंगे, मगर इंशाअल्लाह आने वाले टाइम पे बड़ी राहत होंगी। जो काम के लिए काफ़ी ज़माने से बस्ती के लोगों का इसरार था कि भाई लंदन ब्रिज जो यहाँ पर है वो काफ़ी वीक हो गया है, गिर के कुछ हादसा हो सकता है, जिसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को नुमाइंदगी की गई थी। नकीब मिल्लत ने ख़ास तौर से मुझे ज़िम्मेदारी देकर उन्होंने ख़ुद भी नुमाइंदगी करने पर हमने जाके इसका सैंक्शन लेके आया और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द काम होएगा। और मैं यहाँ पर रेगुलर न सिर्फ विज़िट करूँगा बल्कि काम को तेज़ी करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर साबिक़ा कॉरपोरेटर वासिउद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए बस्ती के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करिए, थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में एक रैपिडो राइडर और खातून मुसाफिर के दरमियान किराया अदा न करने के मामले पर होने वाली तल्ख कलामी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। राइडर का इल्ज़ाम है कि खातून ने तकरीबन 100 रुपये का किराया अदा करने से इनकार कर दिया और रकम का मुतालबा करने पर मुबैना तौर पर बदजुबानी करते हुए इसे झूठे हिरासानी के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। वायरल वीडियो में राइडर खातून से बार बार किराया अदा करने की दरख्वास्त करता है और इसके रवैये पर सवाल उठता नजर आता है, जबकि खातून वहां से जाने की कोशिश करती दिखाई देती है। राइडर ने इसे पुलिस स्टेशन चलने का भी कहा, जिस पर खातून ने मुबैना तौर पर इसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ताहम ताहाल खातून का मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ना ही इस मामले में पुलिस का या मुतालिका हुक्काम की जानिब से कोई बाज़ाब्त बयान जारी किया गया है। మిస్బిహేవ్ చేశానంటుంది, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళొచ్చు అంటే రానంటుంది. ఆఫ్టర్ ఆల్ 100 రూపీస్ కోసం మిస్బిహేవ్ చేశానని డ్రాప్లో నుంచి దిగేసింది. డ్రాప్లో నుంచి దిగిపోయి నన్ను అన్ని అమ్మ బూతులు తిట్టింది, అన్నీ రికార్డ్ అయ్యి ఉన్నాయి. హిందీలో తిట్టింది, అవి నీకు పెడతాను పోస్ట్లో చూడన్నా. ఎలా ఉన్నారు చూడండి ఒకసారి. ఎక్కడి దాకా వెళ్తే అక్కడి దాకా వస్తాను మేడం. మీకు చదవచ్చు కదా, అందుకే అమ్మ బూతులు తిట్టారు. మీరు చదువుకున్నారు కదా, అమ్మ బూతులు అందుకే తిట్టారు. ఉండండి చూడండి, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాను అంటున్నారు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఉంటాను. నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తాను. చెప్పండి, మళ్ళీ చదువుకోలేదు అంటున్నారు, అమ్మ బూతులు తిట్టారు నన్ను. చూడండి, డబ్బులు పేమెంట్ ఇవ్వకుండా ఎగ్గొట్టడానికి ఏదో షాక్ ఉండడానికి ఇలా దిగిపోయి వెళ్ళిపోస్తారు. చూడండి, అని హిందీలో తిట్టారు. మీరు ఎక్కడి దాకా వెళ్ళినా వస్తాను నేను, మీరు ఎక్కడి దాకా వెళ్ళినా వస్తా, నడుచుకునే వస్తా. చూడండి నన్ను ఒకసారి. ఇవన్నీ హిందీలో మీకు ఈ బూతులు తిట్టారు కదా, హిందీలో బూతులు తిట్టారు కదా, అవి కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. నా హిందీ వచ్చి వాళ్ళు ఇవి చదువుకుందంట, చదువుకుని అమ్మ బూతులు తిడుతుంది ర్యాపిడో డ్రైవర్స్ని. ఒక్కసారి చూడండి.
तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर सीवी आनंद ने आज साइबराबाद पुलिस से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर की मौतली के अहकाम जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर का ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी 6 साला पोत्री को सड़क पर कार चलाने का मौका दे रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था। सीवी आनंद ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमा जाती तहकीकात की भी हिदायत जारी कर दी है। सीवी आनंद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस साइबराबाद से कहा है कि मुतालिका सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया जाए और इसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू की जाए। असल वाकया इतवार को जब गंदमगुड़ा बैरागीगुड़ा मेन रोड पर एक लड़की कार चला रही थी जब इसके दादा सब इंस्पेक्टर कार में बैठे हुए थे। ये कार इंतहाई कम रफ्तार से चल रही थी जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था जब बहुत तेजी से वायरल हो गया था। सड़क पर बच्ची को कार चलाते देखकर दूसरे राहगीरों ने बरहमी का इजहार भी किया था। हैदराबाद के ओल मलकपेट के MCH कॉलोनी में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद से मुकामी शहरियों में खौफ व शदीद हिरासा पैदा हो गया है। इलाके मकीनों ने GHMC कमिश्नर को शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि आवारा कुत्ते झुंड की शक्ल में गलियों में घूमते रहे हैं, राहगीरों और 2 पहिया गाड़ी सवारों का पीछा करते हैं, जबकि बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि वो हाल ही में आवारा कुत्ते के हमले में जख्मी भी हो चुका है। शहरियों ने GHMC से मुतालिबा किया है कि इस सिलसिले को फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर हल करते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, इनकी वैक्सीनेशन और नसबंदी करवाई जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को रोका जा सके और इलाके के मकीनों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। హలో అండి, నా పేరు సన్నీ. నేను ఉండేది MCH కాలనీ ఓల్డ్ మలక్పేట్. మా ఇంటి ఏరియాలో చాలా కుక్కలది భయం ఎక్కువైపోయింది. చాలా రోజుల నుంచి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నా అని ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. కాలనీలో 2-3 లేడీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు దాన్ని పెంచుకుంటున్నారు స్ట్రీట్ డాగ్స్ ని. దాని మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వనిస్తలేదు. ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తారో వాళ్ళ మీద రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. పట్టుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా వెలగొట్టేస్తున్నారు. వాళ్ళ పొద్దుగాలనే ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఎగ్జాక్ట్ 10:25 ఆ టైంలో వచ్చిన కాలేజ్కి వెళ్ళే అమ్మాయిని గడిచింది. నేను అదే తోవలో వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను కూడా గడిచింది. గడిచినాక ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు, దాన్ని ఎవరు పట్టుకోవడానికి కూడా వస్తలేరు. ఇప్పుడు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాము, చాదర్ఘాట్ PS కి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాము. దయచేసి కొంచెం దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పటిదాకా చాలా మందిని గడిచినాయి కుక్కలు. అవి నైట్ అయితే 10-15 డాగ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు పొద్దుగాల అయితే 4-5 ఉండే నాకు గడిచేటప్పుడు. రాత్రి కాగానే మొత్తం అన్ని జమ అయిపోతాయి ఒక దగ్గరికి, అందరి మీదే కాబడుతున్నాయి. చాలా రిస్క్ ఉంది చిన్న పిల్లలకి, పెద్దలకి, ఎవరికైనా రూట్లో వెళ్ళే వాళ్ళకి. కొంచెం యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు సనీ. जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजशीर शाह ने पीर के रोज शहर में कायम SIR हेल्प डेस्क का मुआयना करते हुए इनोमरेशन फॉर्म्स की तकमील और वोटर नजरसानी के अमल का जायजा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने BLOs के काम से मुताल्लिक़ अवामी शिकायत कलेक्टर के सामने पेश किए, जिस पर उन्होंने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। बादजा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिले कलेक्टर ने अहल वोटरों से अपील की है कि वो अपने इनोमरेशन फॉर्म को मुकम्मिल करके जल्द अज जल्द मुतल्लिका BLOs के हवाले करें ताकि वोटर फहरिस्त की नजरसानी बर वक्त मुकम्मिल हो सके। इसी रोज उन्होंने ब्राह्मणवाड़ा अपर प्राइमरी स्कूल का दौरा करके बच्चों की इब्तदाई तालीम की तकरीब में शिरकत की, जबकि कौमी यौम अंसदादे आंतों के कीड़ों के मौके पर तलबा में एल्बेंडाजोल गोलियों भी तकसीम की और सरकारी स्कूल्स में मेयारी तालीम, सेहत और बच्चों की बाकायदा हाजिरी पर जोर दिया। आदिलाबाद में MIM के जिले सदर नज़ीर अहमद ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मुख्तलिफ तहत वार्डों में जारी इनोमरेशन फॉर्म के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने BLA 2 सुपरवाइजर और पार्टी जिम्मेदारान पर जोर दिया कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तमाम इनोमरेशन फॉर्म पुर कराकर BLOs के हवाले किए जाएं और फौरी तौर पर इनकी डिजिटलाइजेशन भी मुकम्मल कराई जाए। नज़ीर अहमद ने फॉर्म भरने से मुताल्लिक़ अवाम की शुकूक शुबहात दूर करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हर अहल वोटर की तफसीलात बर वक्त दर्ज करना ज़रूरी है ताकि कोई भी वोटर इंतखाबी फहरिस्त से महरूम ना रहे।
आदिलाबाद में एडवोकेट जुनैद बिन अबूजर की जानिब से उर्दू घर शादी खाना मसूद नगर में समाजी खिदमत के जज्बे के तहत SIR बेदारी प्रोग्राम और वोटर हेल्प डेस्क का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों को SIR इनोमरेशन फॉर्म और वोटर इंदराज से मुताल्लिक़ मुफ्त रहनुमाई फरहम की गई। बड़ी तादाद में शहरियों ने हेल्प डेस्क से इस्तेफादा करते हुए अपने फॉर्म मुकम्मल कराए और मालूमात हासिल की। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर और तहसीलदार आदिलाबाद ने भी हेल्प डेस्क का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस अवामी खिदमत का इक़दाम को सराहा और एडवोकेट जुनैद बिन अबूजर की खिदमत की सताइश करते हुए वोटरों से SIR अमल में भरपूर ताउन की अपील की। आरमूर मंडल में सदर जमीयतुल उलमा हाफिज शेख इब्राहिम की सरपरस्ती और मस्जिद हजरत बिलाल कमेटी के सदर अहमद साहब व अराकीन की ताउन से SIR फॉर्मों की तकमील के लिए बिला मजहब व तफरीक खुसूसी हेल्प कैंप का इनेकाद किया गया, जहां शहबाज ऑनलाइन सेंटर राजा रामनगर की खिदमत से 150 से ज़ायद अफराद के फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा कराए गए। इस मौके पर हाफिज शेख इब्राहिम ने कहा कि बिलखुसूस स्लम बस्तियों में लोगों को फॉर्म भरने से में मुश्किलात पेश आ रही हैं, लिहाजा नौजवान अपने अपने महलों में टीमें तश्कील देकर अवाम की रहनुमाई करें ताकि कोई भी अहल वोटर अपनी हक़ राय दही से महरूम ना रहें। उन्होंने कहा कि वोट एक कीमती हक़ है और जमहूरी ताकत है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को बेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आज बरोज़ इतवार जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम मस्जिद हज़रत बिलाल की ज़ेल कमेटी की निगरानी में जनाब अहमद साहब सदर की निगरानी में एक SIR हेल्प कैंप रखा गया है, जिसमें आज 150 से ज़ायद फॉर्म भरे हैं और ऑनलाइन भी BLO ने स्पॉट से किया। और मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आरमूर के और जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उन नौजवानों से जो बड़े पढ़े लिखे तबका है वो अपने अपने इलाक़ों का जायज़ा लें। और बहुत सारे अफराद फॉर्म भरने में मुश्किल पेश आ रही है, उनको थोड़ा बहुत नासमझी का तशवीश इजहार कर रहे हैं, तो मैं पढ़े लिखे नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो आगे आके इस फॉर्म करें और BLOs को लेकर काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सल्लम इलाक़ों में इसकी बहुत अश ज़रूरत है। और हमारे जनाब शहबाज साहब ऑनलाइन सेंटर जो सैदाबाद में और राजाराम गेट के अंदर उनका ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं, जिन्होंने मुखलिसाना तौर पर अब तक बहुत से अफराद को फ्री भी भरा है अपने ऑनलाइन सेंटर पे, और सुबह से शाम तक बहुत सारे जगह पे जहाँ भी कैंप लगा रहे हैं अपने पुरखुलूस अंदाज में काम कर रहे हैं। अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। और दुआ गो है कि कमेटी के हक़ में भी और यहाँ के BLOs भी जो काम कर रहे हैं बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अपना काम अंजाम पाया है। ज़र्रा भी एक भी ऐसा जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया, बड़े इत्मीनान के साथ किसी को समझ में नहीं आया तो BLOs ने भी उसका काम का तरीक़ा समझाया है। और मैं और एक मरतबा नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह। बांसवाड़ा के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में मुबैना गैर मजाज वेंचर्स और ज़रई ज़मीनों पर कब्ज़ों के इल्ज़ामात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि बाज़ वेंचर मालिकान DTCP ज़ाब्त के खिलाफ वर्जी करते हुए फसली नहरों पर कब्ज़ा करके ले आउट्स कायम कर रहे हैं, जबकि बग़ैर इजाज़त तामीरात, गैर मियारी CC सड़कें और नक्कासी आब का नाक़िस निज़ाम आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। इल्ज़ाम है कि इन वेंचर्स से खारिज होने वाला आलूदा पानी तकरीबन 400 एकड़ ज़रई अराज़ी को मुतासिर कर रहा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायत कुनिंदगान ने म्युनिसिपल, रेवेन्यू और महकमा आबपाशी के हुक्काम पर बरवक्त कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अवाम में और किसानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना जा सके। అధికారులకు చెప్పి యాస్టకస్తుంది. అధికారులు దీనిగా స్పందించడం లేదు, పట్టించుకోవడం లేదు. అయ్యా కాల్వ కబ్జా అవుతుంది, అట్లాగే మున్సిపాలిటీ ఎలాంటి పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా అక్కడ ప్లాట్లు పొలాలని వెంచర్గా మారుస్తున్నారు, అవి తక్షణమే ఆపండి అని. అట్లాగే వెంచర్లో డ్రైనేజ్ వాటర్లు కాల్వల కలుపుతున్నారు. రేపు రైతులకు తీవ్రమైన నష్టాలు జరుగుతాయి. అక్కడ సుమారు 400 ఎకరాలు ఈ మురికి నీళ్లతో ఆ పంటలు పండకపోవచ్చు. అనేక సమస్యలతో వెంచర్లు చేస్తున్నారు. ఈ వెంచర్లు ఆపాలని ఎన్నోసార్లు అధికారులకు
మేము వినతి పత్రాలు ఇచ్చిన అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ రోజు మళ్ళొక్కసారి ఆర్డీఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకవేళ ఆర్డీఓ గారు కూడా దీని మీద చర్య తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ఇంతకన్నా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం చేపడతామని అధికారులకు సూటిగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాము. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। साबिक खत्री अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर तेलंगाना में एक रोजा सरकारी शोक, कौमी परचम सुरंगों, सरकारी तकरीबात मुअत्तल, हुकूमत हिंद की हिदायत पर फैसला। तेलंगाना में SIR फॉर्म्स दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी का इम्कान, रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने की मरकजी इलेक्शन कमीशन से सिफारिश। SIR के दरमियान बड़ी गफलत, हैदराबाद के जलपल्ली में 500 से ज्यादा वोटर ID कार्ड्स लावारिस हालत में बरामद, सिक्योरिटी व तकसीम के निज़ाम पर सवालात, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। शाहबाद 6 अफराद के कत्ल के मुलजिम को चीफ मिनिस्टर के करीबी साथी ने जेल जाने से बचाया था, हरीश राव का संगीन इल्जाम, 20 लाख रिश्वत का भी लगाया इल्जाम। तेलंगाना में नए वजीर तालीम का तकर्रुर किया जाए, आम आदमी पार्टी तेलंगाना यूनिट का एहतजाज, कहा चीफ मिनिस्टर की मसरूफियात की वजह तालीम का शोबा शदीद बहरान का शिकार। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।